Hi all, how are you? I hope all are you safe at your home. Your study is going on. You have to write each and everything in your notebook because when you return to your worksheet, it will be not returned to you again. आपने जो वर्कशीट अभी लिख रहे हो वर्कशीट आपके पास जा रहा है, ये आप वो जब जमा कर रहे हो आपके पास फिर से वापस नहीं जाएगा. दैट्स वाई यू शुड बी रिटर्न टू द स्कूल फुल वर्कशीट लिख के फिर भेजोगे. ओके आप यू शुड बी इफ़ यू वांट टू जेरोक्स निकाल लेना. अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग नॉट ओनली अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. शॉर्ट वाला जो है दैट्स वाई you have to, I think if you take out the xerox now that is easy for you. Xerox निकाल लो. Question answer you have to write in your notebook chapter wise. Okay, lesson number 4, lesson number 3 poem rain of the roof. अभी आप लोग के पास गया था, ठीक है ना. द पोएम रेन ऑफ द रूफ. देखो द पोएम रेन ऑफ, क्योंकि सो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट रिटन ईच एंड एवरीथिंग. इवन आई check the worksheet, not only the trick question answer not possible by you are a student of 9th standard. Read the lesson, read the poem, I explain in the class also, but also not write down your name and return to me. What is this beta? You have to try. Rain of the roof, that's why I am want to complete in the class. But if you are not complete in your notebook or worksheet, then I will call you again in the class school. Otherwise I will call the name in the recording. मैं अगर वर्कशीट में जो डाउट होगा वो अलग चीज़ है. दैट्स वाई आई एम सेंडिंग द PDF ऑल्सो. होमवर्क देती हूँ बट ऑल्सो वर्कशीट ब्लैंक के ब्लैंक छोड़ दिया. हाउ इज इट पॉसिबल? वर्ड्स मीनिंग ऑल्सो ऑल आर नॉट रिटन. 9th standard students, you are take out your dictionary and write the words meaning by yourself. Got it? Try to write the worksheet and dictionary and write the words meaning from the dictionary. You are don't know the meaning of the words meaning. You are not maintain the class. You are not present the class. That's why you are not getting the worksheet. Okay. Otherwise you didn't see the PDF also. That's why. चलिए आज मैंने कर ही देती हूँ. आप लोग you have to complete in your worksheet. Rain of the roof. The poem Rain of the Roof has been penned by William Butler Yeats, Robert Frost and Fionn Cary and quotes. Answer is their quotes. Okay, answer is their quotes. What is mean by Hamid shadows? What is the mean by Hamid shadows? Each and every word's meaning, if you want to find from the dictionary, you can find out. You will get the answer. When you have to read the English, keep with your dictionary beside of you. Okay? आपकी वर्ड्स मीनिंग के लिए हम टाइम नहीं देंगे. हाँ बहुत हार्ड है, आई नो दैट वन. देन आई विल गिव वर्ड्स मीनिंग, टिक द आंसर. व्हाट इज दिस? MCQ यू हैव टू डू बाई ओन. जैसे वर्कशीट देती हूँ खाली नाम लिख के वापस कर दिया. कोई नाम भी नहीं लिखती हो, ये क्या है? व्हाट इज दिस बेटा? You have to write your name in proper way. Okay, each and every worksheet, subject wise worksheet you have to write. किसी ने खाली फर्स्ट पेज लिख दिया, बाकी all subjects are blank. How is it possible? Teachers are separate, subjects are separate. So you have to write the name, your name standard in each and every worksheet. Okay बेटा. So हाँ आपका भी कंफ्यूज नहीं होगा, मैं भी नहीं होंगी. और वर्ड्स मीनिंग लास्ट दे रही हूँ. इसके बाद से वर्ड्स मीनिंग आपको फाइंड करनी है फ्रॉम द डिक्शनरी. बेटा डिक्शनरी का आदत बनाओ. ओके. व्हाट इज द मीन बाय हमिड शैडोज? डार्क पिलो, डार्क क्लाउड्स, डार्क स्काई, डार्क चैम्बर. तो क्या आएगा? डार्क क्लाउड्स. ओके. व्हाट इज मीन बाय स्टैरी शेपर्स? व्हाट इज द मीन बाय स्टैरी शेपर्स? गुड ड्रीम्स, लाइट्स इन द हाउस एट नाइट, स्काई फुल ऑफ स्टार्स एंड ब्राइट डेज. स्टेरी शेपर्स ये अपने साइंस में भी पढ़ चुके होंगे. तो इसको बोला जाता है स्काई फुल ऑफ स्टार्स. स्काई फुल ऑफ स्टार्स. व्हाट डज द पोएट यूज फॉर द रेन ऑफ द रूफ? टिंकल, पैटर, फ्लोरिश,
road. Answer is their pattern. Answer is their pattern. Okay. Next, where can the poet hear the twinkle of the rain? On the roof, on the pebbles, on the doors, on the window. So on the pebbles. ठीक है. What does the word agon mean? What is the meaning of agon? AGONE. तो ये मतलब पास्ट जो हो चुका है. तो इसमें दिया हुआ while away, mug, past और sad. आंसर इज देयर पास्ट. ओके. फिर जाइए. What does the word ere mean? ERE. ये सब आपने साइंस में भी पढ़ चुके हो, एसेज में भी पढ़ चुके हो. तो आफ्टर, बिफोर, दिस, दैट. बिफोर. Okay. Next, who gave a fond look of the poet in the childhood? Father, mother, sun और moon? Mother. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पेज जाइए. Read the extract and give the answer of the following question. Read the extract and give the answer of the following question. When the hermit's side is over of all the starry pairs, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a joy to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Question. Who is considered to be sad and weeping in the verse? Who is considered to be sad and weeping in the verse? ओके. बोलिए आंसर क्या आ सकता है. Who is considered to be sad and weeping in the verse? क्यों? तो poem, as per your poem you have to write the darkness is considered to be sad and weeping rainy tears. The darkness is considered to be sad and weeping rainy tears. Okay. फिर जाइए. What is considered as a breeze on a rainy day? What is considered as a breeze on a rainy day? तो आंसर आप लिख सकते हो pressing one's head. Pressing one's head on the pillow. Pressing one's head on the pillow, कॉमा डालोगे. Lying on a bed. Lying on a bed in the cottage and listening to the sound of the rain on the roof is considered as bliss. Okay. I repeat the answer. What is considered as a breeze on a rainy day? As per your this extract, you have to write pressing one's head on the pillow, comma, lying on a bed in the cottage and listening to the sound of the rain on the roof is considered as bliss. Okay. And last question क्या था. और एक क्वेश्चन है देखिए. What is the poetical device in the third line? थर्ड लाइन में क्या दिया है. Of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो आप इसको क्या लिखोगे. उसी में से लास्ट ये में आपका मीनिंग क्या है. What is the poetical device in the third line? Okay. The poetical device in the third line is personification. Personification. मैंने आप लोग को वो जो फिगर ऑफ स्पीच कराती थी वो है. मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू अप टू 8th standard part of speech. 9th onwards figure of speech. Figure of speech always related with the poem. Always related with the poem and poet. Okay. So the poetical device in the third line is personification. Inanimate darkness is given
द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग melancholy. Okay, so I repeat the question answer only. First question answer as per your extract. Okay, who is considered, जिसको लीव हो गया वो फिर से देख के लिख सकते हो. Who is considered to be sad and weeping in the verse? That's why I will not send this worksheet. Answer. The darkness is considered, considered, considered to be sad and weeping. Weeping मतलब रोना, WEEPING, raining tears. ठीक है. नंबर 2, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 में जाइए. What is considered as a breeze on a rainy day? Second question is there. Write the answer. Pressing one's head, pressing one's head on the pillow, lying on a bed in the cottage and listening to the sound of the rain on the roof is considered as bliss. I repeat the answer. Pressing one's head, pressing, PRESSING, pressing one's head on the pillow, comma, lying on a bed in the cottage and listening to the sound of the rain on the roof is considered as bliss. Okay. What is the poetical device in third line? What is poetical device on third line? Okay, लिखिए. The poetical device, POETICAL, poetical device in the third line, is personification, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन. जब भी आप पढ़ो बड़ा वर्ड्स को आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप क्या करोगे, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो. जैसे हम लोग संधि करते हो ना वैसे ही. पर्सोनिफिकेशन, PER, पार्सो SO, नी NI, नी, FIFIकेशन, CAKTION, पर्सोनिफिकेशन. ऐसे करके तोड़ के बोलोगे तो आपको देखोगे कभी वर्ड्स में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी. ओके. तो पर्सोनिफिकेशन, फुल स्टॉप. इनेमिनेट, INANIMATE, इनानीमेट, इनानीमेट, INANIMATE, INA, NINI, तो मेट MATE. ठीक है. फिर डार्कनेस इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी, द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी QUALITY, क्वालिटी ऑफ बीइंग, BEING, बीइंग, हैं, melancholy, MELANCHOLY, melancholy. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग 8 तक पढ़े थे वो कोई भी जगह में होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाव एडजेक्ट, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच पोएट के छंद के हिसाब से होता है. क्योंकि अभी क्या है, मॉडर्न इंग्लिश हो गया. पहले दिन में अगर आपने जैक एंड जिल बोलते तो उसके साथ हिल को मिलाना ज़रूरी होता था, वेंट अप टू द हिल. लेकिन अभी ये जैक एंड जील हिल ऐसा पोएम नहीं होता है. अभी आपको पता चल ही रहा है जी. आपकी जो ये है देखो, इसमें कोई भी वर्ड्स फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन के छंद नहीं मिलता है. ये पोएट की जो इनर मीनिंग है, कविता का जो इनर मीनिंग है, पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम. पहले जो होता था जो इंग्लिश में, अभी मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है. जैक एंड जील वेंट अप टू द हिल, तो ऊपर हिल होगा तो जील होगा तो हिल होना,
लेकिन अभी के पोएम में ऐसी चीज़ नहीं होती है, इसीलिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है। ठीक है, तो देखो उसमें आपके एक भी लाइन के साथ एक भी लाइन की मेल नहीं है। व्हेन द ह्यूमेड शेडोज ओवर, हाँ लेकिन लाइन मेंटेन जरूरी है, नहीं तो मीनिंग इट विल बी नॉट क्लियर बाय यू, ओके, नॉट योर टीचर। ओके, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, comma, third line, and the melancholy darkness, okay, gently weeps in rainy tears। थर्ड लाइन में क्या दिया है, इसमें बोला है रिवाइज इन द थर्ड लाइन एंड द मेलंचोलिक डार्कनेस, ए लाइन के बेस करके लास्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट ए जॉय टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड and lie listening to the patter of the soft rain overhead। देखो आपके साथ ना ओवर के साथ मिला है, ना स्पेयर्स के साथ मिला है, ना टीयर्स के साथ मिला है ना, तो ये आपको यही सबसे इसका आंसर यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ईच एंड एवरीथिंग। मैं बार बार बोलती हूँ, जो वर्कशीट आपके जाता है कोई भी सब्जेक्ट का, वर्कशीट की कोई यू नहीं होगा, रिटर्न टू द स्कूल। दैट्स वाई अगर इफ़ यू वांट टू टेक द जेरॉक्स यू कैन जेरॉक्स, अदरवाइज आपको क्वेश्चन आंसर तो लिखना है भाई नोटबुक में ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, शॉर्ट के लिए यू एग्जाम में तो आएगा ही ना शॉर्ट, देन दैट्स वाई अगर आप जेरॉक्स निकल सकते हो तो यू कैन डू इट, क्योंकि वर्कशीट वापस जाएगा नहीं, हम चेक करने के बाद अपने पास ही रखेंगे, इसके ऊपर मार्क्स दिया जाएगा, देता है ना, तो इसीलिए। ओके, सो बी केयरफुल, आप लोग अच्छा से रहिए, अच्छा से पढ़िए, और क्या करना है आपको, अच्छा से नोटबुक लिखना स्टार्ट करिए। ये नहीं जो स्कूल नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट स्टडिंग, बेटा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग आर गोइंग टूवर्ड्स यू, यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक। 3 सब्जेक्ट ही जाता है, उससे ज़्यादा तो कोई जाता नहीं है। 3 सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू कंप्लीट विद इन दैट डे। आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास यू हैव टाइम, तो यू हैव टू कंप्लीट विद इन दैट डे, तो आपकी पेंडिंग वर्क नहीं होगा। कोई जाना है, बाई चांस सप्लाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है मे बी, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इसीलिए एवरी डे यू हैव टू डू योर वर्क एज पर योर रिकॉर्डिंग व्हाट एवर दे आर। मेक इफ यू वांट आप स्टूडेंट 9th-10th के बच्चे, तो यू हैव टू मेक द 9th के बच्चे मतलब ग्रो अप स्टूडेंट, यू आर आफ्टर 1 years यू हैव टू गो टू द गिव द एग्ज़ाम ऑफ बोर्ड। सो आप बड़े हो चुके हो, तो आप क्या करोगे, आप अपना काम करते रहो, नोटबुक क्लियर करो, नोटबुक कंप्लीट करो, एग्ज़ाम की पेपर आ रहा है तो उसकी तैयारी करो। जब आपकी नोटबुक में होगा तभी इट इज़ पॉसिबल बाय यू टू गिव द एग्ज़ाम इन प्रॉपर वे, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। तो यू हैव टू कंप्लीट। अगर आपको लगता है जी नहीं है मैं तो बाद में कर लूँगा, बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं बोला ना 8 तक जो कर लियो 9th से आप बड़े हो चुके हो। 9th का मतलब 9th से आपके जो पढ़ना है जो करना है, यू आर बिगिनिंग टू गो द एग्ज़ाम ऑफ द बोर्ड, गोइंग टू एग्ज़ाम। तो आफ्टर 1 years आपका देखते देखते 9th तो आधा तो हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना तो हो ही गया। तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।